my experience words, I will say, after this session, I am at peace. And I would like to thank Vanessa for this, to bringing me here and join this session. He agreed me and he made me so comfortable to join this course. Thank you so Can you much, can sir. you And share one experience that you had in the group experience of the in the group in session? our Acha, past course, how's your pain now? एक्चुअली मुझे काफ़ी नींद नींद लेने के बाद बहुत रिलैक्स हुआ और नींद आ भी बहुत ज़्यादा रही थी मुझे। जैसे ही वो पेन उठता था मुझे लगता था आई शुड लाई डाउन एंड शुड स्लीप। तो जितना ज़्यादा मैं सोई उतना ही मुझे इसमें रिलीफ मिला। ठीक है. मच बेटर, तो Can you काफ़ी share कम है share इससे। one of your experience? And I would like to come to Gaurang also after that. One of your experience. एक्सपीरियंस ऑफ द PLR in particular, Yeah. Anything which changed in total your four life. days. Anything which changed in your life. Mhm. Well, that bring more peace to myself actually. Okay. I'm feeling that I am at peace. Okay. That was the biggest experience what I had. And definitely I'm Sure. feeling light also. And other experiences I already shared that I'm feeling like that वो रस लेना होता है ना, जो हर चीज में एक रस लेने की इच्छा होती है, especially in terms of food. That's why Uh-huh. I'm craving for that. Very good. That's what Very I. good. Thank you. Over to Gaurang. So, so what shall I say? Well, it has been very great journey we are having since last 3 days, and I learned a lot of things here. And though I had certain ideas before, but it was great to know that people can apply those things for these reasons also, and we can heal other people also for their problems they are facing since several lives maybe. And yesterday sir cured Shweta for her problem, and today also he tried, and I'm sure in you all people will help many more people to heal. So I thoroughly enjoyed it, and it's good to know all of you. I liked it in many ways, and it was a very nice experience. Very good, in fact. Thank you very much, sir. Thank you. Vinay, Thank you sir, so much. Thank you. Thank you. Thank you, particularly. Gaurang. Bye bye. Over to It's Rita very ji. nice. Uh, Good evening. I am Rita Malhotra. I am a psychotherapist and a counselor in Mumbai. Uh, at the onset, the first thing is, without any expectations, I joined this course at the behest of Vinay sir. And since there were not many expectations, I am just feeling light. So cute. So that is something very nice. And it was a great session. It was a great course. But still need to join a few dots. And for that, I know we are in safe hands. Vinay sir is always just a phone call away to help us. And I feel as a psychotherapist, it will help me uh, resolve a few issues of my clients who get stuck in some pattern. So maybe I could use a few techniques on them also. And of course, imply them in my personal life as well. I mean, the questions we have with our own self. So at the soul level, we can resolve many things. Thank And you. you on the initial day you had certain apprehensions. So how far you have been able, how successful you had been able to go through those questions and answers. The resistance, Did something made sense to you in this whole journey? yes, sir. The resistance just melted away. I think it's mellowed down. Okay. So Okay. that's the thing That's which I've that's noticed. really good. That's really good. Thank you, sir. Thank you so much. So Of course, uh, missing Preetham sir here. yeah, he was supposed to come. I don't know why he's not yet come. I was waiting for him. Over to Dr. Kirtin Mai, because I also want to know from her
that how was her experience of the journey? Sir, actually, I had, as I said in the introductory session, that with one past life regression, I really was not ready to take any more with past life regressions, because in the meanwhile also I got another chance of this past life regression in some other session, but somehow I was like little reluctant. But the way you have within 4 sessions, my uh, perspective about the past life regression has really changed. I mean, the way you have explained and like how it really helped. Like in my past life regression session which I attended, I was feeling bad that like all the bad things are repeatedly happening again and again. In the last life also, I was the one who suffered, and this life also, why is it happening with me only? This was the one question lingering in my mind all the while. But this time I could get the answer saying that I had to forgive them and move forward and not carry them forward. This reasoning was good. And one yesterday's, I think yeah, the purpose of life thing which you explained, I had been studying this part. Like purpose of life is this salvation, merging with the universal supreme soul or whatever you call. So that one was there in the mind, but meanwhile I was uh, again making new purposes and everything. But again you have pulled me back to that particular point of like purpose of life for anyone is this one. So you made lot of things clear in this session, though it was a past life regression session, talking with Sunita ma'am and Rita ji and Vedula ji, and with all of them, like I really got the actual purpose and perspective of this PLR, like how it really helps and why in which part of our life we are pulled into this. I really get the correct meaning of this with this session. I'm really thankful to you, sir. Actually, when you in the last NLP sessions also, when you told about PLR, because of my past experience, I didn't really show any interest towards this. But somehow I think things have changed, and you really made me come into the session, and now I am ready for PLR because I really need it now. Whether I Thank you. need it That or makes not, now I get that the correct perspective of and purpose of the PLR. Now I get it correctly, sir. Because I was always feeling bad that bad things are happening repeatedly with not only with me, whoever it is. Why it is repeating? Why we are not reconciling with that thing, and why we are carrying it forward? Why is that the person who is harming you is always harming you? So all this, even for my son's autism also, when I wanted to ask, I thought like, okay, let that will also get that its time. Because when almost like more than 6 months back, Sunita ji, you and me, we wanted to take a um, special thing for Tanish, but I thought like it has to take its own course and its own time. So let the universe give me the right time to come into the path. So somehow this PLR has been very enlightening to me. I mean, I really got the crux of that. That is make, though I didn't learn the proper technique and all, because second day when I missed the class, I thought like I'll not be doing PLR and others, whether I'm capable of that or not. Let me leave it aside. I'm ready for PLR, and I know the purpose of PLR now. And that is very enlightening for me. And the way you teach us the subject is, I'm taking more than 2 minutes. Sorry for that, but really, no, it's fine. whether you know or not, initially when I joined NLP sessions, I was feeling like it's so slow with Vinay sir. I can't sit for 2 hours like this. Like that was my complaint. But later, when the sessions have continued like that, the way it is like feeding the baby, like the little months, maybe how your access of listening is one good capacity of you. You are a very good teacher, fantastic. I mean to say, I don't have any words. You have abundance of knowledge, and you are giving ability to the people is very nice. I'm thankful to you for everything, sir. Thank you so much, Dr. Kedini. Because that means a lot to me. Because probably this whole healing process got a little delayed, because sometimes what happens that if we start something with the wrong expectations, probably it won't last long.
So since the healing needs a little time, and it's going to be a little small, it's going to be a journey, so we need to have that much of patience for the process. इसलिए शायद इसीलिए ये सब कुछ डिले हुआ. So over to Arjuna. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everybody, for joining this lovely soulful journey for 4 days. My experience, I got what I came here for, quite close to it. In the second day, with the past life experience, I narrowed it down to a year, which was 1792. And I was a Brahmin in South India. And when I researched it further, I found that, there was the third Anglo-Mysore War from 1790 to 1792. And a lot of, there was a lot of brutalities against Hindu Pandits there. So my journey was somewhere related to that, which I never knew that there was a third Anglo. So I'm researching on that, connecting a few dots. But yes, I came here for my purpose of life. Yes, looking at it, salvation was a good angle. But yeah, what is going to be the median and the channel for that? I was here at a more specific thing. So thank you so much, sir. And thank you, everybody, for being part of this amazing soulful experience. Thank you. Thank you so much, Arjuna. Very kind of you. And Dr. Vedula. And then I'm coming to Ruchi. नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी भुवनेश्वर ओडिशा से. जिंदगी बड़ी अच्छी थी, आराम से कट रही थी, कहीं पे कोई रिग्रेट्स नहीं, कहीं पे कोई कंप्लेंट्स नहीं. लेकिन जीवन में हम सभी के ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर कुछ रोड ब्लॉक्स, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं ऐसी आ जाती हैं कि भीतर से हमको तोड़ कर रख देती हैं. और ये हम सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ. एक तो मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी, दूसरा शारीरिक रूप से, जैसे कि कल मैंने आप सबके साथ शेयर किया. मतलब लगातार 25-26 सालों से लगातार दर्द में बने रहना और हर दिन वो दर्द का बदलता हुआ रूप जो कि लगातार शरीर को ही नहीं, मन को और मतलब हर तरह से परेशान कर रहे. मैं बहुत आशावादी और हर दिन वो मेरी आशा को तोड़ता था. हर दिन वो मुझे इस बात के लिए मजबूर करता था कि और मैं नहीं जी सकती. ऐसे समय में मैंने NLP किया, उसमें विनय सर से मुलाकात हुई और उसके बाद लगातार उनके टच में रही. और उन्होंने हमेशा एक बात के लिए मुझे प्रेरित किया कि आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ खोजो. आप जो कर रहे हो वो ठीक है, दैट्स योर प्रोफेशन, आप कर रहे हो, सब करते हैं, लेकिन आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? उसके लिए जितना अधिक एफर्ट्स उन्होंने लगाया शायद उतना मैंने नहीं लगाया, या अब तक भी मैं नहीं लगा पा रही हूँ. लेकिन उसकी वजह से एक रास्ता मुझे मिला, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मैंने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद विश्वास कीजिए वो रोड ब्लॉक्स निकल गए हैं. जो भी रोड ब्लॉक्स थे वो निकल गए हैं. शारीरिक रूप से तो मुझे बहुत अधिक आराम मिला है, मानसिक रूप से भी बहुत अधिक आराम मिला है. आई एम नाउ अ पीसफुल सोल. अब मुझे सोल जर्नी समझ में आ रही है. सर के साथ, सर की वजह से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया. हर दिन भगवत गीता पढ़ती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, नॉट फॉर मतलब माइंड के रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि मतलब मेरे पर्पस ऑफ लाइफ को और स्ट्रेंथन करने के लिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ. और ये सारी की सारी चीज़ें एक ब्लेसिंग की तरह मेरे लाइफ में हो रही हैं. और PLR विच जस्ट हैपेंड, मुझे पता नहीं था. मुझे लगता था ये सिर्फ एक पता नहीं एक कुछ रहस्यमयी चीज़ है. मुझे नहीं पता था कि हम भी उसके थ्रू जा सकते हैं और उससे हमको कुछ फ़ायदा हो सकता है. और मैंने जब ये फ़ायदा देखा अपने ऊपर तो मुझे लगा कि जिस चीज़ का स्वाद मुझे मिल रहा है, जिसका आनंद मैं ले रही हूँ, क्यों नहीं मैं उसको सब में बांटती, क्यों नहीं मैं लोगों को इसका फ़ायदा देती. और वो मेरे मिशन ऑफ लाइफ का एक हिस्सा बन गया है. तो अब मन में किसी प्रकार की कोई शंकाएं नहीं हैं, अब किसी से कोई शिकायतें नहीं हैं, अब किसी प्रकार के कोई रिग्रेट्स नहीं हैं.
ना कोई ब्लॉक्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मिलाकर मैं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहती हूँ, और उसके लिए हर दिन प्रेरणा मुझे विनय सर से मिलती है। और ये कनेक्शन, ये भी एक मतलब सोल कनेक्शन है, आप सबके साथ भी सोल कनेक्शन है। सो इट्स ब्यूटीफुल, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, दिस जर्नी इज सो ब्यूटीफुल, एंड ये और अधिक सुंदर बना रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच विनय सर। मतलब पता नहीं किस सोल जर्नी का मतलब कनेक्शन से हम इस तरह से मिले, और आप मुझे इस तरह से इतनी सुंदर जर्नी पर आगे लेके जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का भी, जिनके साथ कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मिल रही हैं। आपके अनुभव से मैं समृद्ध हुई हूँ, और ये मेरे ज़रूर काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लैंग्वेज सुन के ही हम तो, हमारा तो आधा दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है। और मैं आपको सुनाना चाहूंगा ना, हाउ शी हैप्पी शी वाज बिफोर शी स्टार्टेड दिस जर्नी। मतलब मैं समझता हूँ शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक एंड वेरी, आई जस्ट लाइक टू a little part of the audio. Yay! आज से PLR शुरू। I'm very excited. मैं एक्चुअली ऐसी ही हूँ सर, ऐसी ही हूँ मैं। अभी भी उछलना कूदना, एट द एज ऑफ 53 मैं उछलना कूदना चाहती हूँ, मैं डांस करना चाहती हूँ, मैं हर तरह की बदमाशियां करना चाहती हूँ। शेयर करना चाहूंगा जो आज आपने मेरे साथ शेयर किया, द ग्रुप रिग्रेशन में जो आपने कुछ देखा था, उससे कुछ रिलेटेड रिसर्च आपने किया, तो आई जस्ट लाइक यू टू शेयर दैट एज वेल। जी जी, मैंने जो परसों हमारा ग्रुप रिग्रेशन हुआ था, यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने शेयर किया था कि मैं जो है एक हॉट एयर बलून के एक्सीडेंट में मेरी मौत हुई, और मैंने अपने आप को ऊपर जाते हुए देखा। बस 1927, एंड इमीडिएटली आफ्टर the session was over, तो मैंने देखा कि वॉशिंगटन डीसी एंड हॉट एयर बलून एक्सीडेंट, एंड यू वोंट बिलीव, एग्जैक्टली गूगल में डालते साथ निकला मुझे कि एक हॉट एयर बलून एक्सीडेंट हुआ था 1927 में वॉशिंगटन डीसी में, यूएस में हुआ था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति मात्र था, उसमें किसी महिला के होने की बात नहीं थी। ये बात मैंने फिर विनय सर से शेयर की, तो विनय सर ने बोला कि लोग, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो एक बहुत ही एलीट परिवार की महिला रही थी मैं, जो कि बहुत ही रिच, जितना बड़ा मैंशन था वो कि किसी मतलब पैलेस से कम नहीं था। तो सर ने फिर कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बड़े बड़े घरानों से होती हैं, राज परिवारों से होती हैं, जो लोग नहीं चाहते कि वो बाहर आएं। एंड मैंने सर से ये भी शेयर किया था, मुझे ये भी नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन था मेरे साथ, वो मेरा हस्बैंड था, मेरा बॉयफ्रेंड था, कौन था मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं है कि उसके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा था। तो सर ने फिर मुझे बताया कि अब बहुत सारी चीज़ें लोग सप्रेस भी करते हैं, तो न्यूज़ में सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। सो मे बी दैट्स द रीज़न, बट देन मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं कि 1927 हॉट एयर बलून एक्सीडेंट वॉशिंगटन डीसी, एकदम से न्यूज़ सामने निकल कर आता है। एंड जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो मेरा पैरों के दर्द का रोमन ग्रीस युद्ध एकदम से निकल कर आता है मेरे सामने जब मैं देखती हूँ, उसको रिसर्च करती हूँ, क्योंकि ये रिसर्च करने की भी मतलब जो बुद्धि है वो विनय सर ने ही दी कि मतलब मैम ऐसा हुआ था, तो मैंने कहा कि हो सकता है ऐसा हो, लेट मी चेक। और इमीडिएटली मैंने चेक किया तो फिर पता चला कि सीरीज ऑफ मतलब क्या कह सकते हैं वॉर्स हैपेंड उन दोनों के बीच में। और मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हूँ और एक कम समय के लिए, और मुझे उस हिस्ट्री से कभी कोई भी जानकारी नहीं थी। तो these things are really very मतलब amazing, it's मतलब like सच में बहुत ही शानदार अनुभव, बहुत ही शानदार अनुभव सर। आपने मुझे उस दिन लिख के भेजा था, जी योर नेम वाज एमिली, और आपने जो मुझे आज स्क्रीनशॉट भेजा है, जी जी दिस वाज February 16, जी sorry, November 4th, 1927. नवंबर 4 जी 1927 was a captain in the United States Army Air Corps, and हाँ there was a silk rubberized and aluminum coated balloon launched from Scott Field near Belleville, Illinois, and reaching जी this much height, but died during the descent after his oxygen supply became depleted.
और ये हाँ। जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है नेशनल एरोनॉटिकल एसोसिएशन से मिली है and जी। Federation of Aeronautic International, because the dead aeronaut was not in personal possession of his instruments. ऐसा इसमें लिखा हुआ है और उसका फोटोग्राफ भी तो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया आज सुबह, तो मैंने बोला कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। This was amazing, कितना अमेजिंग है। एंड एक और बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी सर, सुबह मैं आपसे भी, आपने भी मुझे बोला, मैं डिस्कस की। एक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सर ने किया था, विच इज वेरी पर्सनल, तो इसीलिए मैं शेयर डेफिनेटली नहीं करना चाहूंगी। लेकिन इन सारे मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक चीज जो कॉमन है सर, क्या मैं बता सकती हूँ? बिल्कुल बताइए ना। मैं हमेशा से या तो मैं प्रिंस रही हूँ या प्रिंसेस रही हूँ, या नहीं तो किसी बहुत बड़े मतलब एकदम मतलब हाँ बड़े घराने में एकदम बिल्कुल मस्त उस तरह से। तो फिर इट्स अमेजिंग टू नो। जब मैंने बेटे के साथ शेयर किया, मेरा बेटा बोलता है अम्मा यार हाउ कैन यू डाई, यू वुड हैव किल्ड द अदर पर्सन। मैं बोली कि बेटा दैट वाज नॉट इन माय हैंड, जो कुछ था वो तो था। इट्स वंडरफुल सर। ये 4 दिनों में मेरा पर्पस और स्ट्रांग हो गया है, और मैं मतलब लाइक अब दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अलग हो गई है सर। अब मैं एक टीचर, वो तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन उससे अलग हटकर बहुत ही शानदार हो गई है सर लाइफ। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। ओवर टू रुचि जी। I am Ruchi. I'm from Noida. So I would say when I never planned of it, I never thought about it of doing this course. Past life is something I never thought about it. I never spoke about it. When it came to me, when I got the message, I didn't even think about it. I just said yes, and I went for it. For me, it was going to be a new experience, I thought. So I joined it, and I things disclosed, and I found it's an amazing thing. Like what happens in your past, people can remember it, can recall it. So it's amazing thing which unfolds. And what I learned about is that uh, I thought हमें अपनी लाइफ के सारे जो लेके जो के हैं इसी लाइफ में निपटाने हैं, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगे और इसी लाइफ में अपना सब जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व कर लें, नहीं तो आगे फॉरवर्ड होती जाएंगी। और ये कॉज एंड इफेक्ट पे ये दुनिया चलती है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो बस यही सबसे बड़ी लर्निंग है। थैंक यू सो मच रुचि जी। ओवर टू श्वेता एंड देन वैशाली जी। Hi, I'm Shweta. I'm from Bangalore. I'm basically my professional is I'm a psychologist. I'm very, to be frank, I'm very lucky. I feel because when I was looking for NLP, I browsed many other Google Net and Instagram and everywhere. Then I came into Vinay sir and Preetham sir. There I got registered and I started my journey. After that, I was in contact with them. I was like, meeting up, texting them, speaking to them. Then I was looking for past life regression. For my lucky, or it was God's decision, I don't know. I was about to book for the other person session for the workshop. Then I was never aware that Vinay sir or Preetham sir would do this past life regression therapy. And suddenly I got a message. Luckily, then instead of booking for them, I just came up here. You were the first one, I think. Yeah. So I was like, okay, God is like bringing me to the right direction. Then why shouldn't I miss this? Then that's how I got into the connection with Vinay sir. I think this course has given me a wonderful experience. And one thing I learned is I should forgive everyone. No matter what bad they do to us, we should forgive them. That's how our relationship continues in a good manner. And the next thing I felt is from today I'm starting a new journey. That is what I felt personally.
when I go back to yesterday, my mindset was totally different, and today it's like completely like a new moon day. Okay, how the new moon blooms, how it brights. The today the whole day was like that for me. I think I'll be grateful to Vinay sir for teaching us, and this therapy will help for my patients also. I think from today will be a new birth for me. And thank you so much, sir. Thank you so much, Vetaji. Thank you. Thank you. Now over to Vaishali ji and then Kavita. Which Vaishali are you talking about actually? वैशाली जी आप ही शुरू करें, फिर वैशाली 2, दोनों एक के बाद एक. Okay. Actually, I got this information from Vandana. I'd like to share that Preetham just lives 100 meters away from my home, and Vinay ji is not more than a kilometer away from me, but still, Vandana just a day before, the evening before, she called me and said, कि, let's do this. करें क्या? मैंने कहा करते हैं. तो बस प्रीतम से chat हुई and I joined this group, and I'm glad that I joined. I wanted to do this since years because I've been having nightmares since I don't remember when, and that was a problem. And बहुत time से सोच रही थी about this PLR, and the first opportunity I got, and I jumped and grabbed it, and I'm very happy to be here and experience. I'd like to say that I did not experience anything, but the second day, um, when we did the regression, I was not able to do it. And at night, I sat with my daughter, and उसकी कुछ छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो उसके साथ मैं बैठी और उसको रिग्रेशन कराया with the help of the recording that Vinay sir had given that night. So and she had an experience, उसको vision था, दिखा कि कहीं पे वो है जहाँ बहुत ज्यादा war है, and there are so many very poor people around her, बहुत बुरी हालत है, और वहां पे एक ओल्ड लेडी ने उसे उठाया, और लावा का फील्ड है, वॉल्केनो इरप्शन के बाद जो लावा होता है उसका फील्ड है, कहीं तालाब सा भरा हुआ, और उसके अंदर उसे फेंक दिया. तो उसके बाद में जो उसने रिसर्च की, तो शी फाउंड आउट कि दैट वाज, एंड शी न्यू द ईयर, इट वाज 1204. एंड उसने जब रिसर्च किया तो उसे पता चला कि इन 1204 इन इंस्टानबुल के वहां पे कोई सी लड़ाई हुई थी, which started on 8th of April and finished on 14th of April, which is actually her birthday. और लावा फील्ड की बात आई तो उस एरिया में 1202 में एक इरप्शन हुआ था, जिससे कि लावा जो उसमें था इतना खतरनाक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन था कि उसकी लावा फील्ड्स क्रेटर्स बन गए थे लावा के, जिसमें लावा, मोल्टन लावा काफी टाइम तक था. तो शी कुड रिलेट कि ओह, so that was an experience which she had, and I'm looking forward to it, having a session with you, Vinay sir. Thank you so much. Thank you so much for being here with us in this journey, and that's an amazing experience. And thank you so much. Thank you so much for it. Thank you. Thank you so much. Over to Vaishali ji. Hello. जी. Am I audible, sir? हाँ जी, हाँ जी. Yeah, it's very good, sir. After 2 hours, मेरा जो इंटरनेट का था, जो 4 दिन से ठीक चालू था, वो अचानक प्रॉब्लम हो गया, and I'm just shifting from mobile to laptop and laptop to mobile. So what is happening with me?
is God is deciding. आपने नहीं लिया, it's very good. Okay. First of all, thank you very much for everything, sir. I'm from paramedics, or I came here You can switch off your video. because even my mindset is like that only. Spirituality, ये मेरा भी एक बेस है सर. जब तक मेरे दिमाग में कुछ समझ में कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मैं वो ग्रास्प नहीं कर पाती. Why I'm here? So sir, I was in a medical field. 13 years I was working in government hospital, BC Medical. I was very happy. I was very with a very good people, all doctors and high level everything. And all of the sudden one day I lost my job because they asked me for bribe and I said no. Then I was so disturbed कि why it is happening with me. लेकिन now I understand कि भगवान कुछ भी करता है तो there is one purpose for me. ओके जो मुझे फिर पूना से बॉम्बे लेके आए. बॉम्बे में मैं जैसे मैंने बोला ना कि आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स जो मेरे इसमें है नहीं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड सो मेनी थिंग्स, बट मैं किसी में खुश नहीं थी. आई यूज्ड टू गेट मनी बट आई वॉज नॉट हैप्पी. And then when I came across with this fingerprint analysis, that time I came to know that I can be a good counselor. और उसके लिए सर खाली मैंने कोर्स नहीं किया है, तो मैंने बहुत सारा रीडिंग किया है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं ऐसे छोटे मोटे जो मुझे अपग्रेड कर पाए. लेकिन दिस पास्ट लाइफ रिक्रिएशन सर मैंने टीवी पे देखा था, मैंने बहुत बार पढ़ा था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं ये खुद कर पाऊँगी. सो थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि जिसके हमें आस होती है वो कहीं ना कहीं सामने पे आ ही जाते हैं. ओके, एक्चुअली आई मिस्ड योर सेमिनार. ओके, यू रिमेम्बर आई कॉल्ड यू कि आई मिस्ड योर सेमिनार, लेकिन मुझे बहुत करना था तो राइट. सो यू सेंड मी दैट यूट्यूब का लिंक, और देन वो भी ठीक से नहीं हो रहा था, लेकिन somehow I managed, और विदाउट एनीथिंग आई सेड नो आई वांट टू डू दिस. ओके, तो सर मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है कि मतलब आफ्टर फिनिशिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज एंड ऑल. आफ्टर फिनिशिंग माय इमीडिएटली आई गॉट जॉब. आई वाज वेरी हैप्पी इन गवर्नमेंट सर्विस और बहुत अच्छे से काम किया सर. ऑल में जिस दिन मैंने ज्वाइन किया 16 मई 94 में एंड 16 मई 2006 में, आफ्टर 13 ईयर्स एकाएक सब ब्रेक हो गया. उसके बाद जब भी मैं कुछ करती हूँ सर, मैं वहाँ पे पीक पे जाती हूँ. जो साइकिल हो रहा है ना सर, मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं कुछ भी करूँ, वेदर ज्वेलरी डिज़ाइन करूँ जो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है भी नहीं, बट फिर भी मुझे वहाँ पे सक्सेस मिल जाता है. लेकिन ये टाइम सर जब मैं फिंगरप्रिंट एनालिसिस कर रही थी और मैंने जब काउंसलिंग चालू किया, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगी, लेकिन हो गया सर मुझसे. और मैं इसमें इतनी सक्सेसफुल रही हूँ ना सर कि लोग सामने से आके मुझे कांटेक्ट किया ये लॉकडाउन में. लास्ट ईयर सर, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, पर फॉर मी इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर. बहुत सारे लोग खुद आके मुझे अप्रोच हुए. और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इसमें मेरा कोई प्राइड नहीं है सर. जो लोग काउंसलर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाके है कि जिनके मैरिज डिवोर्स लाइन पे थी, तो उन्होंने बोला था कि हमें डिवोर्स लेना है, लेकिन किसी ने मेरा नाम बोला है. और 3 सर ऐसे हैं डिवोर्स जो मैंने मीन्स सक्सेसफुली मैंने मैनेज किया उनको फिर से यूनाइट करने में. तो मैं उनको बोलती थी कि आई एम जस्ट एक पर्पस हो, ये आपका होने वाला था ही नहीं. तो मुझे ऐसा लगा कि सर मेरा भी कोई पर्पस है लाइफ में, लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज़ दैट. और जैसे मैंने बोला ना सर, सक्सेस खाली नॉट इन मनी के इसमें नहीं है, लेकिन सर ये भी तो फैक्ट है ना सर. वैसे आप देखो तो माय हस्बैंड उसका जॉब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी, सब कुछ अच्छा है सर घर में. लेकिन अंदर से जो मेरा पर्पस है ना वो सॉल्व नहीं हो रहा है, और मैं ढूंढ रही हूँ सर उसको. आई नीड योर हेल्प, क्योंकि ये 4 दिन में ना सर मैंने कार ड्राइविंग सीखा है. वो मतलब बाजू में को पायलट है मेरे साथ, मुझे इंडिपेंडेंटली ड्राइव करना है और मैं करके रहूँगी सर. जो मैं ठान लेती हूँ मैं करके रहती हूँ, क्योंकि जब तक भगवान ने मुझे यहाँ तक लाना है ना सर. सुबह से मैं चुप बैठी थी, अगर आता है, अगर नहीं हो रहा है ना, तो गॉड को मालूम है कि ये नहीं होने वाला है. और वाकई सर आफ्टर 2 आवर्स पूरे सोसाइटी में बैंडविड्थ चला गया है. ये मैं मोबाइल पे चालू कर रही हूँ, वो भी मैं विंडो पे बैठ के कर रही हूँ, ये सब सामने विंडो खोल के मैं बैठी हूँ. तो जो भी होता है सर अच्छे के लिए होता है. अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी. आई मेट
सुनीता मैम, आई मेट रीता मैम, विदुला मैम, बाकी सब कितने सारे लोग कि जहाँ मैं कभी किसी से मिली नहीं हूँ, लेकिन अभी लगता नहीं है कि मैं उनको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। जैसे मैंने विदुला मैम को देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, या सुनीता मैम, ऐसे लगता है ना कि सर सोल कनेक्शन है। तो वो उसका कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं होता, ये एक्चुअल में फील करना होता है। और सर मैंने बोला ना कि ये सब करते करते मैं लास्ट 5 years आई एम वर्किंग एज अ डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट। मेरे इसमें सर मैं नंबर 1 पे हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो नॉलेज कम है। ओके, मुझे पैसा मिल रहा है सर, बट नॉट द सेटिस्फैक्शन, क्योंकि लोगों को उससे भी ज़्यादा किसी की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला ना, एक सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है सर, कि उसकी माँ मुझे पूछे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो क्योंकि सर व्हेन आई चेक दैट पर्सन रिपोर्ट, वो जो बच्चा है वो नॉर्मल था, क्योंकि वो बच्चा ठीक तरह से पूरा डेवलप हो रहा था, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं वो पूरे 9 मंथ में होते हैं, मतलब आफ्टर 10 weeks ऑफ योर व्हेन द फिटस इज इन द वोम ना, तो 10वें महीने में 10वें वीक में आपका चालू हो जाता है, एंड योर ब्रेन फिनिश समहाउ 7th मंथ में। तो उसका सब कुछ नॉर्मल था, और डिलीवरी के टाइम उसको प्रॉब्लम आ गई, और वो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो उसका रिपोर्ट तो नॉर्मल दिख रहा है, तो लेडी मुझे पूछ रही है कि व्हाट इज हैपनिंग, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ। और सबसे बुरी बात ये है ना सर, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया कि तेरे घर के सब फैमिली पागल है करके। तो अभी मेरे पास वो सर एक केस है, और मैं बोल ही रही थी कि नहीं, गिव मी सम टाइम, लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि सर मुझे लगता है आई एम जस्ट द सोर्स टू हील अदर्स, मैं खुद नहीं कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है सर। तो प्लीज़ सर मेरा वो रिग्रेशन तो कर दो, क्योंकि सर कहीं पे तो मैं अटक गई हूँ, मेंटल ब्लॉक है। आप आपका ये भी सारा सच है अरेंजमेंट्स सर कर लो, कि- आपके सारे या बैंडविड्थ ठीक कर लो। जिस दिन भी ठीक हो तो आप मुझे मेरे को अपन लोग टाइम यस सेट यस, कर लेंगे, मैंने डिटेल। बोला ना सर, आज मैं चुप बैठे थे कि अगर होना है ना तो सब कुछ आज ही होगा, नहीं तो आई जस्ट वेट। आज मैंने कुछ, क्योंकि 3 दिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सो लेट गिव अदर चांस टू रियली ओके, या। सो one more thing, Sunita ma'am, is it okay if I contact you? एनी टाइम, numbers are there Hello? in the group. Yes, ma'am. No Yeah, issue. No issue. She'll be more than happy all the time. yeah. And sir, then how about my, मेरा कब होगा रिग्रेशन, क्योंकि सर मैं हम एक खुद दो दिन में ही करना कर लेंगे, चाहती आप हूँ, सारी चीजें नॉट जो मुझे ओनली आपने फॉर बताई। माय। नहीं नहीं नहीं, आप कर लीजिए, नो शू। हाँ हाँ, अब आप क्योंकि सर अगर मैं कुछ दूसरों के ऊपर कर रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी हाउ आई फील, ओ ये यस क्या यस, है, ओ कैसा यस, है, देन ओ ओनली आई यस, विल ट्राई फॉर अदर्स। परफेक्ट या, परफेक्ट परफेक्ट। और वाकई सर मुझे सक्सेस चाहिए ना, वो खाली पैसों के लिए नहीं, पैसा इज मस्ट है, क्योंकि वी कैन नॉट लिव। अगर आपको ये सब लेके इस स्टैंडर्ड से रहना है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, तो यू नीड मनी। ओके, एंड आई डोंट वांट, अपने पास दिमाग है, आई हैव अ एजुकेशन, तो व्हाई डोंट आई यूज इट, यस यस, व्हाई नॉट, ऐसा मुझे लगता है, और कर लोग दे। मिल जाते हैं सर। या, और मैंने बोला ना एस्ट्रल ट्रैवलिंग, तो ये 5 साल में सर मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं ना, तो मैं सोचती थी कि इस सब का यूज़ हम अपने कंट्री के लिए क्यों नहीं करते, है ना, कि उनके पास इतने पावर्स है, तो क्यों नहीं ये टेररिज्म फिनिश करते। मैं ऐसा थोड़ा सा बच्चों जैसा मेरे दिमाग में आता है ऑलवेज, So बट sweet. होता है, बट थैंक यू वेरी मच सर। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, या थैंक यू सर। Over to, thank you so much for being so open to things. Thank you, Sunita ji and Kavita ji. I have to speak. Yeah. Yeah. It's been a kind of time travel for me, no doubt, because I could access my own soul purpose, because I always used to wonder, why am I like this? Why I don't find any much interest in world, but in healing people. So while the other people were being regressed and sir was giving the commands, I was also able to access my soul, and a lot of things were, coming to surface for me, and I was able to access the soul purpose. And then suddenly I came across the last year diary, when on 3rd June, sir, if you remember, I got a message for you. I got a message for sir from the universe, that
it is his sole purpose to, call the souls from all over the world, in fact, internationally, for the cause of, humanity. And while, sir was regressing some people, and I was receiving the commands, so, I could see everything happening. It's already there. Actually, there is no past, present, and future. And I actually saw that the message I had got was from the future. And that was like, my God, that was like, I don't know how you people are taking it, but for me, it was really, then I understood ki, yeah, even sir does not know his purpose. That for what a big purpose is there. And, he has to train the warriors of light. And you all people, and then I got messages for all of you, that you all people are all chosen ones, and it is, in your destiny to be very successful healers, and you guys have to trust on yourself. So that was all. Thank you so much. She is like light in my life. So thank you, Sunita ji. Thank you so much. It's the other way around. So I'd like to request Kavita ji to share her views. Hello sir, thank you first. अरे बाबा, आपकी तो हंसी सुन के हम सर मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक्चुअल में मुझे तो आपके बारे में कुछ ऐसा कहीं से एक मिलना कुछ वो एक मेरे लिए इतना क्या बोलते हैं बहुत अच्छा मेरे लिए वो मिला, क्योंकि कोई चांस ही नहीं थे। मेरा एक ग्रुप है मुंबई का, जिसके उनके ग्रुप में आपके बारे में मुझे पता चला और उसने कहा कि बहुत अच्छा है देखो, तो जस्ट मैंने आपका वो ज्वाइन किया और एनएलपी में मुझे इतना अच्छा मैं उसमें से सीख पाई सर, क्योंकि एनएलपी के बारे में मैंने सुना था, लेकिन जो आपका जो पैटर्न है सर सिखाने का वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि और उसमें जो मेरे साथ सेशन हुए वो भी बहुत, उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। और उसके बाद जो मुझे एक प्रॉब्लम था जिसका आपने जो सॉल्व किया पास्ट रिग्रेशन में जाके, वो भी बहुत अच्छा था सर। आपसे तो सर मैं बहुत कुछ सीख गया। अभी मुझे ये पीएलआर के लिए थोड़ा टाइम नहीं था, लेकिन ना मुझे सीखने की, आपसे ही सीखने की बहुत इच्छा थी कि मुझे आपसे वो सीखना ही है। मैंने अपना टाइम, वो दूसरा क्लास था वो मैंने अपना कैंसिल किया कुछ दिनों के लिए कि नहीं मुझे फ्रेश मूड से ये सीखना है, इसलिए जो रेगुलर जो मेरा चल रहा था उसे मैंने कुछ दिनों के, मन 4 ही दिन है तो मैंने उसे स्टॉप किया कि नहीं मुझे सर से सीखना है और फ्रेश मूड में वो सीखना है, नहीं तो एक किया और फिर उसके बाद थक के मैं कुछ तो भी कर रही हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए था। मैं बोली कि ठीक है वो बाद में कर लूंगी, लेकिन इसमें मुझे फ्रेश मूड से ही सीखना है। तो और इसमें सर मैं उस दिन इतना खुश हो गई और कि मैं सीरी को इतने इजीली मैं ट्रांस में भी लेके गई। तो मैं आपके साथ इतना फ्रीली बिहेव करती हूँ सर, मैं एक्चुअल में बहुत कम बातें करती हूँ, ज्यादा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपके साथ जब मैं बात करती हूँ ना सर मैं इतना फ्रीली और फ्री भी फील करती हूँ सर, और फ्रीली मैं आपसे बात भी करती हूँ और बिंदास पूछती हूँ। सब जन इतने हैं कि मैं किस तरह से इस सवाल करूं, इतने लोगों के सामने भी कुछ भी कैसे, ऐसे बाकी टाइम पे मेरे साथ होता है, लेकिन जब मैं आपसे बात करती हूँ ना सर, मैं आपसे के साथ एक अच्छा एक फ्रेंड ही मैं आपको देखती हूँ सर, मैं सही में बोल रही हूँ, और बिंदास होके मैं आपसे पूछती हूँ कुछ भी, और मुझे वो सॉल्यूशन भी मिलते हैं सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं जो आपने मेरे साथ सेशन किया और अगर बाद में भी मुझे सर, हाँ आपसे जो मेरा लाइफ पर्पस है, और एक सेशन तो सर मुझे आपके साथ करना है, क्योंकि मैं आपसे ये भी पता है कि नागपुर में भी एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें भी मैं किसी से नहीं गई, लेकिन वो पास्ट रिग्रेशन जो आपने किया था उसमें मैं सिर्फ आपसे गई सर पास्ट में,
बाकी 2 सेशन मैंने ऐसे किए थे, मैं आपको बताया था कि एक नागपुर में हुआ था वर्कशॉप और एक ऑनलाइन, लेकिन दोनों में नहीं गई, लेकिन आपके साथ मैं ऑनलाइन गई हूँ सर, और फर्स्ट टाइम मैं वो एक्सपीरियंस करी कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। कि मुझे ऐसा लगता था पहले कि हाँ इमेजिन ये क्या है, लेकिन वो एक्चुअल में मैंने वो ऐसा होता है वो देखा है सर। मुझे सही में बहुत अच्छा लगा सर। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thanks for all of you. For Thanks to everyone. I hope I did not वो सर मैं लेकिन इतना कभी किसी से बात नहीं करती सर, जो मैं आपके साथ ना बहुत बिंदास होके मैं बात करती हूँ सर। Thank you. बहुत बिंदास होके। नहीं Anyone sings well? Anyone sings well? No, I'm just, everybody will sing. We'll sing together. I want to have a finishing note on a song. Yes, I'm just playing that song. Just a moment. I have already opened up that song. आपने सोचा Okay, मैंने okay. पहले से तैयारी कर लिया है तो so I won't just want to say I want to be great. I'm really grateful and thankful to all of you for being here, for being so accepting. That was the biggest thing, because in this program, just being a participant or trying to learn something was not enough. In fact, your acceptance was very much required, because there are so many things where we can go into arguments, but you accepted the way. And I will always request you, all of you, not to stop here. Keep guiding me as well. Keep sharing with me things which you come across, because nobody is complete. And I want just that this this journey should carry on with each one of you, should lighten up many more lives. So with that only wish, and wherever I can be instrumental, I can be helpful in making you more and more, you making your dreams come true, I will feel I am really, I'll be feeling very happy about it. तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग सब इस जर्नी में मेरे साथ आए, और आपने ट्रस्ट किया, आपने अपना समय स्पेयर किया, और साइमल्टेनियसली आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं आपका मतलब आई एम नॉट जस्ट थैंकफुल, बट मैं आपका हमेशा रेडी रहूँगा। और अगर इसके होने की वजह से किसी की भी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो I think I will thank God for that, taking no credits of it. और अगर किसी की लाइफ में मैंने मतलब इस पूरे सेशन के दौरान कुछ गलती से, नॉलेज से या वर्ड से किसी को कुछ भी गलत कह दिया हो या हर्ट कर दिया होता है, I ask for that, forgiveness. Thank you so much. And with this song, we will